Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रेम सका गौरांग प्रभु जी। थैंक यू सर्वरूपा माता जी अच्छे कीर्तन के लिए। आज हम लोग देख रहे स्कंद दूसरे का अध्याय 10 श्लोक संख्या 19। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। श्लोक इस प्रकार है। विवक्षोर्मुखतो भुम्नो वह्निर्वाग् व्यहृतं तथोः जले चैतस्य शुचिरं निरोधः समजायत। Translation by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. When the Supreme desired to speak, speeches were vibrated from the mouth. Then the controlling deity fire was generated from the mouth. But when he was lying in the water, all these functions remained suspended. जब भगवान ने बात करने की इच्छा जब सोचा तब जो शब्द निकलना चालू हो गया, आवाज निकलने चालू हो गए, और जो उनके जो नियंता देव जो अग्नि है वो भी अपने उनके मुख से बाहर आए थे, जनरेट हो गए थे। जब सुप्रीम जो है जब वो पानी में सो गए थे तब ये जो सब कार्य जब रुक गए। हम लोग परपट पढ़ लेते हैं। परपट बाय श्रील प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। The peculiarity of the gradual development of the different senses is simultaneously supported by the controlling deities. It is to be understood, therefore, that the activities of the sense organs are controlled by the will of the Supreme. The senses are, so to speak, offering a license for the conditioned souls who are to use them properly under the control of this controlling deity deputed by the Supreme Lord. One who violates such controlling regulations has to be punished by degradation to a lower status of life. Consider, for example, the tongue. Its controller deity Varun. The tongue is meant for eating, and men, animals, and birds each have their different tastes because of different licenses. The taste of human beings and that of the swine are not on the same level. The controlling deity, however, awards or certifies a particular type of body when the particular living entity develops a taste in terms of different modes of nature. If the human being develops taste without discrimination, as does the swine, then the controlling deity is certainly certified for the next term to award him the body of a swine. The swine accepts any kind of foodstuff, including
stools and a stools, and human being who has developed such indiscriminate taste must be prepared for a degraded life in the next life. Such life is also God's grace, because the conditioned soul desired a body like that for perfectly testing a particular type of foodstuff. If a man gets the body of a swine, it must be considered the grace of God, because the Lord awards the facility. After death, the next body is offered by superior control, not blindly. A human being, therefore, must be on his guard as to what sort of body he is going to have in the next life. An irresponsible life of indiscrimination is risky, and that is the declaration of all scriptures. Jai Srila Prabhupada. पाद की जय। हरे कृष्णा। प्रभु जी, माता जी, दंडवत प्रणाम। हम शुरू करते हैं। यहाँ पे ये जो इसके लिए जो मैंने हेल्प लिया था, हिज ग्रेस जन्माष्टमी प्रभु जी, उनका एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें से मैंने थोड़े से उन्होंने जो कहा था वो लिया था, मैंने उसकी मदद ली थी मैंने। तो प्रभु जी ने शुरुआती क्वेश्चन किया था कि मुर्गी पहले या अंडा। ये हम लोग देखते हैं कि ये काफी एक पेचीदा सवाल है, और बहुत लोग बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं। और बड़े बड़े जो लोग, बड़े बड़े विद्वान पंडित, भौतिक जीवन से मटेरियली जो काफी बड़े हैं, मतलब अच्छे खासे पढ़े लिखे जो है, वो ऐसे प्रश्न से बौखलाए जाते हैं और वो उनको कोई सवाल नहीं रहता है। लेकिन प्रभु जी ऐसे कह रहे थे कि जो भक्त है उसको ये सवाल पेचीदा लगता नहीं है, इस भक्त के पास ये आंसर तुरंत रहता है। तो इस श्लोक में हम लोग देखते हैं कि ये श्लोक में क्लियरली बताया गया है कि जो भी भगवान के जो अपने दृश्यमान किए हुए भगवान के जो भी अंग प्रत्यंग है, उस हर अंग प्रत्यंग की जिम्मेदारी एक नियंता देवी देवताओं को दी गई है। तो हर देवी देवता जो है वो किसी ना किसी अंग के वो नियंता है। तो इससे एक पता चलता है कि काफी सारे नियंता है, लेकिन वो नियंताओं को जो कंट्रोल करने वाला कौन है? जो ईश्वर है। तो ईश्वर के बारे में देखते हैं तो ईश्वर जो है वो परम ईश्वर, तो मतलब ईश्वरों के भी ईश्वर हम लोग जिसको कहते हैं वो परमेश्वर जो है। तो हम लोग ब्रह्मा जी ने उस पर्टिकुलर वो जो श्लोक है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो कृष्णा ने देवताओं को जिम्मेदारी दी है हर अपने जो अंग है या अपने जो भी सेंसेस है उनको कंट्रोल करने की, लेकिन फाइनल जो कंट्रोलर जो है वो भगवान है, भगवान। और ये हम लोग पिछले भी काफी श्लोकों से देख रहे हैं कि भगवान को जो भी जब इच्छा हो गई उस हिसाब से उनके अंग बनते गए। तो ये इससे एक क्लियर मतलब जाहिर होता है कि हमारे जो भी सेंसेस है, हम जो सेंसेस से मतलब या तो बात करते हैं या खाते हैं या फिर सूंघते हैं या फिर हम लोग सुनते हैं, ये सभी सेंसेस का जो मेन जो डीईटी है, जो मतलब भले कंट्रोलिंग डीईटी कोई तो देवी देवता है, लेकिन इनका जो फाइनल कंट्रोलर जो है वो भगवान श्री कृष्ण है, भगवान नारायण है। तो उसके लिए ब्रह्मा जी जब कहते हैं कि सच्चिदानंद विग्रह बोल रहे हैं कि वो कौन है वो विग्रह, ये भूत, हम लोग जो पंच महाभूत से बने हुए जो शरीर है, जो बॉडी है, उसको विग्रह नहीं कहते। विग्रह मतलब जो दिव्य, जिसकी शरीर दिव्य है। जैसे भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म कर्म दिव्य है, ऐसे भगवान के जो विग्रह है, भगवान का जो बॉडी है, भगवान का शरीर है, वो भी एक दिव्य शरीर है। तो उसको सच्चिदानंद विग्रह कहा गया है। तो सच्चिदानंद मतलब जो सत्य है, परम है, परमानेंट है, जो ज्ञान से पूरा भरा हुआ है, और वो जो आनंदमय है वो सच्चिदानंद। ये सब सिर्फ वो भगवान को ही ये पर्टिकुलर जो एडजेक्टिव बोलेंगे सच्चिदानंद, ये सिर्फ भगवान को ही लग सकता है, बाकी किसी को नहीं लग सकता।
अभी हम लोग देखते हैं कि पर्टिकुलर हम लोग भगवान की जब बात कर रहे हैं तो भगवान का जो परम बोलते हैं ना, भगवान परम है, परम परम ईश्वर। तो हम लोग एक जो 10.12 जो अर्जुन ने भगवत गीता में जो श्लोक लिया था, हम लोग उसको भी थोड़ा ये उसके बारे में सोचते हैं कि परम ब्रह्मम परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुष शाश्वत दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। यहाँ पे अर्जुन श्री कृष्ण को 10वें अध्याय में श्री कृष्ण को वो ये कहते हैं कि आप कौन है? तो आप परम ब्रह्म हो, आप परम धाम हो, आप पवित्र हो और परम भगवान हो। मतलब आप सभी चीजों में आप एब्सोल्यूट, ये बोलते हैं ना, आप हर चीज में टॉप मोस्ट हो, मतलब परम हो, उससे उससे कोई हो ही नहीं सकता है। आप क्या हो? शाश्वत हो, आप परमानेंट पुरुष हो। और हम लोग भी देखते हैं कि ओनली पुरुष भगवान श्री कृष्ण है। बाद में बोलते हैं कि आप दिव्य हो, आप आदि देव हो, आप अजम हो, आप विभुम हो। तो ये जो अध्याय है ना, ये अध्याय जो है वो भगवान का जो कृष्णा का जो वास्टनेस है, मतलब बोलते हैं ना उसका जो एक बहुत बड़ा विशाल काय जो रूप हम लोग देखते हैं ना, ये अध्याय उस पर्टिकुलर चीज का एक बोलते हैं ना एविडेंस है। क्योंकि अभी यहाँ पे जब अर्जुन बोल रहा है कि भगवान को आप परम ब्रह्म हो, आप परम धाम हो, आप पवित्र हो, तो लोग बोल सकते हैं कि ठीक है, इसके लिए प्रूफ क्या है? तो फिर प्रभु जी कहते हैं कि ये अध्याय का जो ये श्लोक है, ये प्रूफ है इस चीज का कि भगवान का जो विशाल काय जो रूप है वो यहाँ से बता रहा है। और हम लोग ये नहीं, 11वें अध्याय में भी भगवान ने जो अपना जो विशाल जो रूप दिखाया था, विश्व रूप, वो भी एक चीज का हम लोग जब भी उसको पढ़ रहे थे तो हम लोग भी पता है कि भगवान ने वो जो विशाल रूप था, वहां से हम लोग को पता चलता कि भगवान के हाथ, मतलब हमारे जो हाथ है वो भगवान के ही हाथ है। हम जो मुंह, हम लोग जो अपने जो जो हमारे जो सेंसेस दिख रहे हैं वो एक्चुअली भगवान से आए हुए हमारे पास जो है ये सेंसेस है। तो यहाँ पे जब सृष्टि का जब सर्जन होने के पहले जो क्या हुआ, तो जो विराट पुरुष था वो प्रकट हुआ। और ये प्रकट मतलब स्पेसिफिकली हम लोग उस वर्ड को मतलब अंडरलाइन करते हैं, प्रकट क्यों? तो वो उत्पन्न हुआ या जन्म हुआ नहीं बोल सकते, प्रकट हुआ। मतलब वो जो पहले से ही था, वो सिर्फ ब्रह्मा के सामने प्रकट हुआ, जो पहले से ही था। और वो क्या कर रहे थे? वो एक के बाद एक अपने इंद्रियों को अपने इच्छा द्वारा दृश्यमान करने लगे। उन्होंने अपने सब जो इंद्रिय थे वो एक एक इंद्रिय वो बाहर निकालने लगे थे, और वो दृश्य मतलब हम लोग को दिखाने लगे, मतलब हम लोग को इन द सेंस ब्रह्मा जी को वो दिखाने लगे। ब्रह्मा जी वही कह रहे थे। तो वैसे ही हम लोग देखते हैं कि उनकी बोलने की जब इच्छा हो गई, तब उनके मुंह से उनको मुंह खा गया। उनके मुख से फिर उनकी जो डीटी बात करने की जो शक्ति कौन है, उसका जो नियंता जो अग्नि है वो भी प्रकट हुआ था। अभी हम लोग एक चीज को थोड़ा सा ना एक देखते हैं कि डार्विन की थियरी, इस चीज के ऊपर काफी लोग जो साइंस में बहुत मतलब इस चीज को बहुत बड़ा माना जाता है। अब ये चीज डार्विन की जो थियरी था कि आदमी बंदर से प्रकट हुआ, मतलब सॉरी उत्पन्न हुआ, पहले आदमी बंदर था फिर बाद में इवोल्यूशन की वजह से। तो ये थियरी जो इवोल्यूशन है वो हम लोग देखेंगे कितना कितना वो मूर्खतापूर्ण है कि उस चीज को मतलब किस तरीके से लिया है। और ये भौतिकवादी लोग उस चीज को बहुत अच्छी तरह से मानते हैं, लेकिन जो भक्त है, जो जिसने भागवतम पढ़ा है, जो भगवत गीता मानते हैं और कृष्ण के ऊपर जिसका विश्वास है, वो ऐसे डार्विन की थियरी को मूर्खतापूर्ण मान के उसको दुर्लक्ष करता है। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा था कि सुबल प्रभु जब आए थे 2 महीने पहले, तो हम लोग नेहरू साइंस सेंटर घूमने गए थे सब लोग। तो उस नेहरू साइंस सेंटर में अलग अलग जो चैम्बर्स है, उसमें एक चैम्बर था, सेक्शन जो था वो डार्विन का था। हम लोग एंट्री किया तब हम लोग को पता चला कि सुबल की फैमिली थी, मेरी फैमिली थी। हम लोग जैसे एंट्री किया तो हम लोग को बोला डार्विन की थियरी। जब भी हम लोग किसी सेक्शन में घुसते तो हम लोग हर एक सेक्शन में हर एक बोर्ड पढ़ते थे, मतलब एटलीस्ट एक आध दो बोर्ड थोड़ा या तो डिटेल में या फिर जस्ट एटलीस्ट पढ़ते थे। और क्या उसका जो बोलते हैं ना हेडिंग है, हेडलाइन है, वो पढ़ के आगे निकलते थे। लेकिन जैसे ही हम लोग ने पता चला कि हम लोग डार्विन के इवोल्यूशन के
सेक्शन में हम लोग एंट्री किया है। हरे कृष्णा। हाँ, तो जैसे ही हम लोग ने एंट्री किया, तो जैसे हम लोग को पता चला कि हम लोग डार्विन के इवोल्यूशन थियोरी के सेक्शन में एंट्री किया, हम लोग थे वो जन सब लोग बिना कहीं इधर उधर देखे सीधा दूसरे दरवाजे से बाहर निकले। तो मैंने सानिका को भी बताया और साकेत मतलब छोटे थे काव्य, उनसे भी बात की कि हम लोग ने आप लोगों ने कहीं देखा भी नहीं, क्यों क्यों? तो बोलते नहीं है, हम लोग ऐसी चीजों को मानते नहीं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि जो भक्त है या जो भगवत गीता पढ़ा हुआ है और जो भागवतम पढ़ने का, तो उसको ये पता चलता है कि डार्विन की थियरी कितनी मूर्खतापूर्ण है। और ये हमारे जो मतलब जो अभी बच्चे हैं, उन्होंने भी इस चीज को अच्छी तरह से मान लिया, भले वो साइंस के हो, भले इंजीनियरिंग करने वाले हो, लेकिन ये डार्विन की थियरी को पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण मानते हैं। और प्रभुपाद जी ने भी बीच में मतलब एक पहले जब पढ़ा था, तो एक साइंटिस्ट से जब बात कर रहे थे, साइंटिस्ट ने डार्विन की थियरी को जब प्रभुपाद जी के सामने मतलब प्रश्न पूछा था, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि अकॉर्डिंग टू डार्विन, डार्विन्स फादर वाज अ मंकी, सो ही हैज थियराइज्ड फुलिशली। तो एक सिंपल लाइन में प्रभुपाद जी ने उस साइंटिस्ट का मुंह बंद कर दिया। अगर डार्विन के अनुसार डार्विन का पिता जो है वो बंदर है, तो इसका मतलब डार्विन की जो थियरी है वो फुलिश है, मूर्खतापूर्ण है। तो ये जो इस तरीके से प्रभुपाद जी ने उस पर्टिकुलर जो डार्विन की थियरी को एकदम तुरंत हटा दिया। तो आगे हम लोग चलते हैं कि इस पर्टिकुलर श्लोक में दिया था कि इनडिस्क्रिमिनेट ईटिंग, ये पर्टिकुलर वर्ड को यहाँ पे प्रभुपाद जी ने हाईलाइट किया है, इनडिस्क्रिमिनेट ईटिंग। आज हम लोग देख रहे हैं कि जो आदमी है, जो इंसान है, इंसान एक 1.5 स्क्वायर फीट जबान का जो एरिया है, जहाँ पे हमारे टेस्ट बर्ड्स रहते हैं, जहां से हम लोग एक्चुअली हम लोग को टेस्ट पता चलती है, तो ये जो टेस्ट बर्ड का जो एरिया है 1.5 स्क्वायर, सिर्फ 1.5 स्क्वायर इंच है जबान पे। एक बार उस जबान के बाद हमारे वो गले से उतर के जब नीचे जाता है, तो ना हम लोग को कुछ टेस्ट पता नहीं चलता है। और इस सिर्फ टेस्ट बर्ड को सेटिस्फाई करने के लिए आज इंसान कहां से कहां पहुंच गया है, क्या लेवल पे उसने नेचर को दुरुपयोग किया है, नेचर को पूरी तरह से उसने ये किया है, मतलब नेचर की पूरी तरह से उसने बर्बाद कर दिया है। तो जो अभी करंट रिपोर्ट जो है उसके अनुसार ये दुनिया की जो फूड इंडस्ट्री है वो उसका $3 ट्रिलियन है। 2023 के 22 में बता था 2.5, मैं 2. मतलब 2020 के को थोड़ा सा जो चढ़ा के बता रहा हूँ, क्योंकि 2030 का उनका जो अनुमान है वो 5 ट्रिलियन है। तो उसके हिसाब से 2020 को 3 ट्रिलियन समझ रहा हूँ। $3 ट्रिलियन की जो इंडस्ट्री है, $3 ट्रिलियन का मतलब हम लोग देखते हैं ना कि $1 ट्रिलियन मतलब 1 लाख करोड़। तो $3 ट्रिलियन इज 3 लाख करोड़। इतना रुपयों की फूड इंडस्ट्री है, सिर्फ फूड इंडस्ट्री, मतलब होटल हो या फिर खाना बनाने के जो भी इतना है। और मतलब ये डॉलर की बात है, और अगर उस 3 लाख करोड़ को हम लोग रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो 2 करोड़ 40 लाख करोड़। इतनी भयंकर बड़ी फूड इंडस्ट्री है। और वो फूड इंडस्ट्री का काम क्या है, सिर्फ हमारा 1.5 स्क्वायर इंच की हमारी जो जबान है उसके टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई करना। तो यहाँ अगर हम लोग देखते हैं कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री, तो शायद स्टील इंडस्ट्री भी ना हो, इतनी बड़ी इंडस्ट्री शायद अपनी बाकी कितनी भी मतलब हमारी शायद मेडिकल इंडस्ट्री भी इतनी बड़ी ना हो, इतनी बड़ी तो फूड इंडस्ट्री है। और इसके वजह से मतलब ये नहीं है, फूड इंडस्ट्री की वजह से मेडिकल इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग इतने इनडिस्क्रिमिनेट ईटिंग बोल रहे हैं ना, हम लोग कुछ भी खा रहे हैं किसी भी लेवल पे जाके। मतलब चाइना में तो हम लोग देखते हैं कि तो मतलब वो तो भयंकर है, चाइना थाईलैंड वगैरह वहां तो भयंकर है। हम लोग से थोड़ा, हम लोग भी तो गए गुजरे ही है इंडिया वाले, लेकिन ये थोड़ा सा वो थोड़ा और गए गुजरे। कोई भी हिलने वाली चीज बोलते ना, इफ यू सी ए चाइनीज डोंट मूव बिकॉज चाइनीज इट्स वॉट एवर मूव्स। अगर आपने किसी चाइनीज को देखा तो आप हिलना बंद करो, क्योंकि चाइनीज क्या करते, हिलने वाली हर चीज को खाते हैं। तो ये तरीका मतलब ये
एक जोक भी कहा गया है, तो भी ये एक्चुअली सच्चाई है, एक भीषण सच्चाई है कि चाहे जिस तरीके से आज इंसान कुछ भी खाने पे मजबूर हो गया है, तो यहाँ पे इसके लिए प्रभुपाद जी ने इस पर्टिकुलर श्लोक में क्लियरली कहा हुआ है कि इनडिस्क्रिमिनेट ईटिंग से क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर हमारी टेस्ट सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग कुछ भी खाते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, चलो भगवान का काम क्या है, जीवात्मा को खुश करना। तो अगर जीवात्मा को खाना पसंद है तो भगवान बोलता है ठीक है, तुम एक सुअर बन जाओ, क्योंकि सुअर कुछ भी खा सकता है, उसको किसी चीज से परहेज नहीं है, वो हर चीज खा सकता है। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, आपको खाने की इतना इच्छा है, तब सुअर बन जाओ और जो भी मिलेगा वो खाओ। तो फिर वो जो है, उसके लिए प्रभुपाद जी बोले कि यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि आपको आगे वाला शरीर क्या मिलेगा। हम लोग देखते हैं कि जीवात्मा को खुश करने के लिए भगवान हर चीज करते हैं। बाबा अगर कोई जीवात्मा कहता है कि भगवान नहीं है, तो भगवान बोलते हैं ठीक है, मैं तुम्हारे लिए नहीं हूं, तुम खुश हो ना। तुमको अच्छा लगता है कि अगर मैं नहीं हूं, अगर ये पता चल गया, आपने ये प्रूव कर दिया कि भगवान इस दुनिया में नहीं है, और अगर मुझसे तुम खुश होते हो, तो मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगा और तुम्हें अपना एहसास भी दिखाऊंगा नहीं। और फिर वो जीवात्मा उसमें खुश होता है, चलो भगवान नहीं है, उसको लगता है कि जो मैंने सोचा वो सही है। इसी की तरह हम लोग देखते हैं कि निराकारवादी को भगवान बोलते ठीक है, तुमको अगर मैं इसमें देखता, अगर तुम मुझे निराकार समझ रहे हो, तो मैं तुम्हारे सामने ब्राह्मण एफल्जेंस में आऊंगा, तुमको दिखूंगा नहीं। तो ये जो चीज जीवात्माओं को जो खुश करने की भगवान की जो आदत है, उसके वजह से हम लोग जब इनडिस्क्रिमिनेट ईटिंग पे चले जाते हैं, जिस तो उससे हमारा मतलब भगवान उस तरीके से हम लोग फिर एक अलग अलग हमको बोलते हैं ना, टेस्ट बर्ड्स सेटिस्फाई करने के लिए भगवान हम लोग को अलग अलग उस तरीके से हम लोग को एक नया शरीर देते हैं। तो आगे चल के हम लोग ये भी देखते हैं कि भगवान ने जब अपना मुख ये किया था, उसके पहले भी भगवान ने खाने के लिए मतलब बोला था ना कि खाने की जब इच्छा हो गई, भगवान ने तभी खाना खाया था। तो यहाँ पे भी बताया कि जो हमारे जो पूरे अंग प्रत्यंग का जो कोई नियंता भगवान किसी देवी देवताओं को करते हैं, वैसे ही हमारे जो पचन है, जो हम लोग खाना खाते हैं, उसको पचाने वाले भी भगवान है। वो तो हम लोग 15वें अध्याय में हर बार सुनते ही है ना, पच्चाम्यनम चतुर्विधम। तो हमारा जो वैश्वानर जो हमारे बॉडी में है, वो हो खाना पचाने के लिए हम लोग को हेल्प करते हैं। मतलब इससे एक चीज हम लोग को मतलब बहुत क्लियरली हम लोग को आइडेंटिफाई करनी चाहिए और हम लोग को मन में रखनी चाहिए कि हमारे हर हर चीज, हमारी बॉडी की हर चीज जो है वो भगवान की देन है, और हम लोग को हर चीज को भगवान के लिए ही यूज करनी है। तो हमारे लिए तो अम्बरीश महाराज की तो हमारे पास एग्जांपल है ही। हम लोग हर मतलब कोई ना कोई तो हर चीज अम्बरीश महाराज का एग्जांपल देते ही है कि कैसे उन्होंने हर सेंस को भगवान के लिए यूज किया था। तो हमारे जो सेंसेस है, जैसे प्रभुपाद जी ने इस पर्टिकुलर श्लोक में भी कहा है कि हमको हर चीज जो है वो भगवान के लिए यूटिलाइज करना है, भगवान के आनंद के प्रीत्यर्थ, भगवान की सेवा के लिए हम लोग को हमारे सेंसेस को यूटिलाइज करना है। जो आगे एक श्लोक जैसा प्रभु जी ने इस पर्टिकुलर श्लोक को लिया था कि नारायण परम वेदा देव नारायण अंगजा नारायण परम लोका गोलोक। तो इसमें भी आगे क्या है, नारायण परम आखा, नारायण परम योगा, नारायण परम तपः, नारायण परम ज्ञानम, तो नारायण परम गति। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर से यहाँ पे देखते हैं कि नारायण परम वेदा है, जो वेद है उस वेदों के भी परे है नारायण। जो 4 वेद हम लोग देखते हैं उसके भी परम परे जो है वो नारायण है। देवा नारायण अंगजा, कि ये जो सब जो देवी देवता है या हम है, हमारे जो भी अंग है वो सब नारायण है। नारायण परम लोका, ये परम जो लोक है, परम लोक, उसके आगे भी नारायण है। मतलब जो हम लोग देखते ब्रह्मलोक, सत्यलोक, उसके भी ऊपर जो है नारायण का लोक है। तो उसके लिए ये जो अपना ब्रह्म संहिता में जो श्लोक है, गोलोक नामनी निज धामनी तले च तस्या देवी महेशा हरिधाम सुतेषु तेषु ते ते प्रभाव निचया
विहिता च ये ना गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी खुद इस पर्टिकुलर परम लोका, जो नारायण परम लोका है, उसके बारे में ब्रह्मा जी खुद कहते हैं कि लोएस्ट ऑफ ऑल लोकेटेड देवी धाम ने, मतलब क्या बोले कि जो देवी देवी धाम जो है, हाँ, वो सबसे अगर नीचे है, जो जो वर्ल्ड हम लोग पृथ्वी करते हैं, तो उसके अभाव कौन है, तो महेश धाम है। उसके महेश धाम के अभाव कौन है, तो हरि धाम है, हरि धाम। लेकिन उसके भी अभाव जो है, वो बोलता है कृष्णा का जो खुद का धाम है गोलोक वृंदावन, वो सबसे ऊपर है। तो बोलता है कि वो जो गोलोक वृंदावन के जो भगवान जो गोविंद है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर चीज को ब्रह्मा जी ने हाईलाइट किया था। तो नारायणम परम लोका, भी नारायणम परम आका, मतलब किसी भी यज्ञ से भी नारायण परे है, हर चीज से परे है नारायण। बाद में आगे हम लोग देखते हैं कि वो बोलते हैं कि नारायण परम योगा, कोई भी योग जो है उससे भी परे है, तो नारायण उससे भी परे है। नारायण परम तपा, हर तप से परे है नारायण। नारायण परम ज्ञानम, तो जो ज्ञान है, कितना भी हम लोग टॉप मोस्ट लेवल अगर ज्ञान देंगे, तो वो ज्ञान से भी परे नारायण है। तो प्रभु जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे लिया था कि दामोदर लीला में, कि परम ज्ञानम से जो परे है ज्ञान, वो भगवान को एक भक्ति योग के द्वारा यशोदा माता ने छड़ी से रुलाया। वो भगवान बोलते ना, मुहु, मतलब फूट फूट के रो रहे थे, सिर्फ रो नहीं रहे थे, फूट फूट के रहते। मुहु श्वास कंप त्रिरेखांग कंठम, मतलब इतना फूट फूट के रो रहे थे भगवान, किसके वजह से, यशोदा की छड़ी के देख के। तो वो जो परम ज्ञानम परम लोका परम ध्यानम, ये जो जो हम लोग देख रहे थे, वो जो परम जो भगवान है, वो एक यशोदा के छड़ी के सामने रोने लग गए। तो मतलब वो वहां पे भगवान की जो, मतलब प्रभु जी कह रहे थे कि भक्ति से हम लोग इतने जो परम जो भगवान है उसको हम लोग बांध सकते हैं, उसको हम लोग अपने अपने वश में कर सकते हैं। और फिर आगे चलते के देखते कि नारायण जो है परम गति। तो ये जो नारायण है, वो नार के जल में शयन करते हैं, उसके लिए उसका नारायण नाम है। और फिर वो नार जब उस नार के जल में जब वो शयन करते हैं, तब पूरा जो काम है वो रुक जाता है। अभी आगे चल के हम लोग देखते हैं कि सब अंग, इस जो नारायण है, इसके सब अंग दृश्यमान हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि वो एक एक श्वास जब लेता है पूरा, और श्वास जब छोड़ते हैं, तो उसके हर अंग प्रत्यंग से जो पोर्स रहते हैं उसमें से एक एक ब्रह्मांड निकलता है, एक एक ब्रह्मांड। और फिर हर ब्रह्मांड में क्या होता है, गर्भोदक्षाय विष्णु के द्वारा हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा की निर्मिति होती है। ये ब्रह्मा जी जो खुद कह रहे हैं, तो वहां पे ब्रह्मा जी की निर्मिति होती है। और ब्रह्मा जी जब वहां पे देखते हैं, तो कई साल की, कई लाखों करोड़ों साल, मतलब प्रभु जी कह रहे थे कि ब्रह्मा सोच रहा था कि मुझे क्या करना है, वो आगे पीछे ढूंढ रहा था। फिर उसने क्या किया कि वो जो जिस कमल के जो इसके ऊपर बैठा था, वो स्टेम को पकड़ के नीचे उतरने लगे, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। तो बोलते हैं कि फिर वहां पे वो जाके जब बैठे, तब उनको वो, हम लोग ने सुना है कि तब तब जब सुनते हैं, तो भगवान ने तप किया। तो तप कितने साल किया कि वो जो पृथ्वी गणना के अनुसार 300 करोड़ खरब साल, 300 करोड़ खरब साल भगवान ने तप किया। तो उसका अगर हम लोग 300 करोड़ खरब, तो खरब कैसे होता है कि जब हम लोग 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ 10 करोड़, फिर 1 अरब, फिर 10 अरब, उसके ऊपर होता है 1 खरब, मतलब 100 करोड़ का 1 अरब, 100 अरब मतलब 1 खरब। तो ऐसे 300 करोड़ करोड़ खरब साल भगवान ने तप किया। तो यहाँ पे प्रभु जी ने बहुत एक अच्छा एग्जांपल दिया। और लास्ट टाइम वामन लीला माता जी ने वो विनम्रता के ऊपर बोली थी कि, मतलब प्रभु जी बोल रहे थे कि भगवान कौन है, कि वो भगवान एक्चुअली भगवान के जो अंश है, ब्रह्मा जो है, सॉरी ब्रह्मा जी जो है, वो भगवान से उनका जन्म हुआ था। वो भगवान के भक्त जो जन्म से ही भक्त है, भगवान के जो नाभि से उनका जन्म हुआ था। तो मतलब वो भगवान के कितने भक्त रहेंगे। तो ऐसे भक्त को भी कितने साल तप करना पड़ा था, 300 करोड़ खरब साल भगवान को तप, ब्रह्मा जी को तप कर
तब करना पड़ा, तब जब उनको भगवान प्रसिद्ध मतलब उनके सामने भगवान ने प्राकट्य दिखाया उनको। तो प्रभु जी बहुत अच्छा कह रहे थे कि हम लोग जो है एक 10-15 साल हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करके हम लोग एक्सपेक्ट करते कि हम लोग काफ़ी बड़े हो गए और फिर हम लोग लोगों को मतलब ये करते कि आप भक्ति नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो, आप कर्मी लोग हो, करके लोगों को हम लोग ये करते हैं, चिढ़ाते हैं, भगवान का उन लोग का लोगों का मज़ाक उड़ाते हैं। तो वही प्रभु जी बोल रहे थे कि 1 मिनट। सॉरी प्रभु जी, माता जी। तो मतलब ये चीज़ को हाइलाइट किया था वो प्रभु जी ने कि हम लोग 10-15 साल सिर्फ हम लोग ये करते, चैंटिंग करते और फिर हम लोग एक बहुत बड़ा भक्त समझ लेते हैं कि जब ब्रह्मा जो एक्चुअल भगवान के इतने बड़े भक्त है, उनको 300 करोड़ खरब साल तब करना पड़ा, तब जाके भगवान प्रकट हुए उनके सामने। और उसके लिए फिर वो हम लोग को देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें विनम्रता के लिए हम लोग को तृणादुपिशु नीचन का हम लोग को श्लोक पता है कि वो कितना इंपॉर्टेंट है, हम लोग को कितना विनम्र होना चाहिए हर चीज के प्रति। कि हम लोग भगवान प्रभुपाद जी के कृपा की वजह से हम लोग को सिर्फ 16 माला भी करके 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल भी फॉलो अगर करेंगे तो भी प्रभुपाद जी बोलते कि आप गॉडेड चले जाएंगे, भगवान के पास चले जाएंगे। सिर्फ इतना मतलब इतनी छोटी सी हमारे लिए प्रभुपाद जी ने हम लोग को बोला ना कि इतना तुम इतना सा भी करोगे तो भी आप गॉडेड पहुंचोगे। जबकि ब्रह्मा जी जो भगवान के भक्त है उनको कितने साल तप करना पड़ा। तो आगे चल के फिर हम लोग देखते हैं कि फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की निर्मित की, लेकिन सृष्टि की निर्मित तो की, लेकिन वो सृष्टि के निर्मित में जीव नहीं था। तो उसके लिए वापस भगवान को उन्होंने भगवान से मदद मांगी और भगवान ने फिर अपने जो कटाक्ष है उस कटाक्ष से उन्होंने भगवान ने हर जीव हर जो क्रिएशन था उसमें जीव डाल दिया। तो फिर प्रभु जी ने फिर वापिस वो पहले क्वेश्चन को पूछा था कि ये जो है कि हम लोग जो पूछते हैं कि मतलब जो लोग पूछा जाता है कि मुर्गी पहले या अंडा, तो यहाँ से पता चल जाता है कि जो भगवान है, तो मतलब ये पहला क्वेश्चन जो इस पर्टिकुलर भागवतम या इस पर्टिकुलर अध्याय को जो पढ़ेगा उसको ये सवाल कभी आएगा ही नहीं, भगवान पहले या अंडा मुर्गा पहले या अंडा, सॉरी। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज को प्रभु जी ने बहुत अच्छी तरह से हाईलाइट किया था कि हम लोग को देखना चाहिए कि मतलब ब्रह्मा जी ने हर चीज को अपने या तो भ्रुकुटी से या फिर अपने आंखों से या जैसे सबसे ब्रह्मा जी ने सबको जन्म दिया। और फिर जब स्लोली हम लोग इस कली युग में आ रहे हैं तो हम लोग इस माया के वश में आके हम लोग ये सब चीज भूल रहे हैं। तो हमको सिर्फ अभी यही चीज मतलब हम लोग जो भागवतम पढ़ के हम लोग को ये चीज का ज्ञान होते जा रहा है कि हम जो है वो सिर्फ एक अनकंट्रोल्ड ह्यूमन बीइंग नहीं, बट वी आर ए कंट्रोल्ड ह्यूमन बीइंग कंट्रोल्ड बाय द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। और हम लोग को उनके शरण में जाके हमें अपने इंद्रियों को कार्य करना है, इंद्रियों का कार्य करना है। उनके शरण में जाके ही हम लोग को अपने जो भी बोलते हैं ना हमारी जो भी इच्छा है वो भगवान के इच्छाओं के साथ हम लोग को अलाइन करना है और हम लोग को खुद को भगवान को कंप्लीट शरण जाना है। तो आज के लिए मतलब इस पर्टिकुलर श्लोक से मैंने जो प्रभु जी से या फिर कहीं और से जो इंफॉर्मेशन निकाल के आपके सामने प्रस्तुत किया है, तो मैंने आप मतलब ये मेरा ये था। यहाँ पे मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। अगर मेरे से कुछ गलती हो गई रहेगी, कोई चूक हो गई रहेगी तो प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रेजेंटेशन था। बहुत से अच्छे पॉइंट्स हैं और डार्विन वाला भी जो कि हम लोग जब भी इवोल्यूशन का बात आता है हम लोग डार्विन को कनेक्ट करते हैं। एंड डार्विन का थियरी कितना
विदाउट बेस है, ये हम लोग देख सकते हैं कि इसमें कोई बेस नहीं, वो खुद ऐसा मतलब अपने बहुत से जो इस्कॉन के डिवोटी से बोलते हैं, वो खुद मतलब उसको पक्का नहीं था, वो इफ एंड बट्स उसने काफी सारा दिया, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा मतलब हिमसेल्फ वाज नॉट श्योर, मतलब ऐसा जब भी कोई हम तथ्य प्रेजेंट करते हैं तो इट इज लाइक ए, है ना, जैसे कोर्ट में होता है कि सेक्शन नंबर आईपीसी सेक्शन नंबर ये उसके हिसाब से ये है और इसके हिसाब से ऐसा होगा, बट ही हिमसेल्फ इज नॉट श्योर एंड ही इज डाउटफुल। इफ एंड बट्स काफी सारा है उसमें, so that is not correct। और एक जो तात्पर्य में जो एक स्ट्राइकिंग पॉइंट जो मुझे लगा, जिस पॉइंट टू ऐड दैट, प्रभुपाद जी सुअर का एग्जांपल देते हैं कि मतलब सुअर कुछ भी मतलब खा लेता है, एंड ऐसा नहीं है कि वो मतलब घृणास्पद है तो उसको कोई दिक्कत हो रही है, ही इज एंजॉयिंग इट। तो ये जो जीव है बोलते हैं, ये भी मतलब जो है ही इज एंजॉयिंग, दैट इज ऑल्सो भगवान का कृपा। नहीं तो अगर उसको मतलब हमको जैसे घृणा होती है इससे, अगर उसको भी अगर घृणा होनी हो जाए शुरू, तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। तो दिस इज वन स्ट्राइकिंग पॉइंट एंड वी शुड बी केयरफुल कि जैसे वैष्णव का गुण है मित भूख में कंट्रोल्ड ईटिंग ओनली इफ रिक्वायर्ड, ये ऐसा जो एक क्वालिटी है ये हम लोग को डेवलप करना चाहिए। और बाकी द क्लास वाज वेरी वेरी नाइस ब्रो, थैंक यू। हरे कृष्णा, नंदन प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा विश्वनाथ प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। मेरा आवाज आ रहा है ना? हाँ प्रभु जी आ रहा है। ओके, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। पहली बात तो ये कि आज आपका क्लास काफी सुंदर था और काफी अच्छे पॉइंट्स आपने लिखे, इसमें से मैंने जो मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगा है कि आपने जो बताया, मैं संख्या को तो 3 ट्रिलियन डॉलर आपने जो बताए थे, जो केवल इतना बड़ा फूड इंडस्ट्रीज है पूरे विश्व में, जो केवल हमारी ये कितने इंच की जीवा बताई थी प्रभु जी आपने? 1.5 इंच की, 3 इंच की, 1.5 स्क्वायर इंच। क्या बोल रहे थे आप? क्या बोल रहे थे? कितनी इंडस्ट्री की वैल्यू बोल रहे क्या? हाँ, वो भी आपने बताया था ना। वो 3 ट्रिलियन डॉलर, मतलब हम लोग देखेंगे तो 2 करोड़ 40 लाख करोड़, 2 करोड़ 40 लाख करोड़ रुपीस। और जीवा की साइज आपने 1.5 स्क्वायर बताई थी। हाँ, 1.5 स्क्वायर इंच। हम लोग देखते हैं ना अपनी जबान की जो एरिया सिर्फ 1.5 स्क्वायर इंच है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। इंडस्ट्री चलती है, तो ये काफी अच्छा पॉइंट था आपका। और जो आपने बताया कि आप कहीं घूमने गए थे और आपके साथ कुछ एक फैमिली और थी, तो डार्विन का आपने जैसे पढ़ा तो आपने बोला यहाँ हमें नहीं जाना है ना? तो ये काफी एक अच्छा था। और एक चीज यहाँ पर मैं बस यही ऐड करना चाहूंगा प्रभु जी कि ऐड तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो मेरे को समझ में आया मैं वहाँ पर बस ये बोलना चाहूंगा कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे अशुद्धताएं भी बढ़ती जा रही हैं। और पहले के समय में तो अशुद्धताएं कम रही होंगी, लेकिन उस वक्त भी लोगों की बुद्धि में ये कृष्ण कॉन्शियसनेस इतना अच्छे से नहीं बैठ पाया होगा कि वो डार्विन के सिद्धांतों को कुछ खंडित कर सकें। और हम जैसी पतित आत्माएं भी जो कलयुग में धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से आज हमारे सामने ज्ञान का प्रकाश है कि हम सही और गलत में अंतर समझ पा रहे हैं। और श्रीला प्रभुपाद जी कलयुग में आए और इन्होंने इतना अच्छे से पूरे वेस्ट में जाकर के इसका अच्छा प्रचार किया। और आपको भी मैं एक वीडियो देख रहा था, मैं अभी शेयर करूंगा आपके साथ, कि दूसरे समाज के जो लोग हैं वो भी अपने समाज से इतना उब चुके हैं कि वो अभी उनकी दृष्टि हमारे समाज की तरफ है और वो देखना चाह रहे हैं कि कितना अच्छे से ये प्रेम से रहते हैं। और डेमीगॉड्स जो कहते हैं कि इनके इतने सारे देवी देवता हैं। और यहाँ पर जो तात्पर्य में शिला प्रभुपाद जी ने कहा है कि हमको अपने जो हमारे देवी देव जो वरुण देवता का नाम दिया गया, ये हमारे जीवा का जो कंट्रोलर वरुण देवता है, और हमको उनके हिसाब से ही चलना होगा ताकि हम आगे विकसित कर सकें।
तो देवी देवताओं का भी हम देखते हैं कि कितना एक मनुष्य समाज में कितना इम्पोर्टेंट है। भक्त समाज में आते ही तो हम भगवान श्री कृष्ण पर निर्भर हो जाते हैं ताकि हम और प्रगति कर सकें और देवी देवताओं को हम सम्मान कर सकें। लेकिन मनुष्य समाज में जो अभी उस स्थिति में नहीं है, लेकिन वो देवी देवताओं को भी पूछ करके आगे बढ़ सकता है। एक चीज ये मुझे काफी श्रील प्रभुपाद जी के इसमें अच्छी लगी, और भगवान कृपा करते हैं, शुकर योनि देकर के भी कृपा करते हैं। और इस बस एक चीज में और कहूँगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, और ये चीज थी कि जैसे दूसरे समाज के जो लोग होते हैं वो शुकर से घृणा करते हैं, निंदा करते हैं, लेकिन हमारे समाज में तो हम देखते हैं, भक्त समाज में तो अगर हमको कहीं शुकर दिख भी जाए तो हम हो सकता है कि थोड़ा सा शारीरिक रूप से दूर रहे उनसे, लेकिन अंदर से हमको भगवान शुकर जो वराह अवतार थे उनको भी देख करके हम भगवान की स्मृति करके आते हैं। तो कितना सनातन धर्म कितना आगे है। और एक चीज में प्रभु जी आपसे ये जिज्ञासा थी मेरी, आपने ये बताया कि ब्रह्मा जी सृष्टि नहीं कर पा रहे थे तो भगवान ने उनके अपनी कृपा कटाक्ष करके उसमें जीव डाला। तो ये कैसे प्रभु जी, थोड़ा सा मैं समझा नहीं था कि कैसे भगवान ने मतलब उसे उस सृष्टि पर भगवान ने अपनी आंखों के माध्यम से जीव उसमें डाला, एक क्या किया, अगर आप तो प्रभु जी प्लीज। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपका एकदम लास्ट में आपका जो क्वेश्चन था, मतलब आपने बोला था कि भगवान की दृष्टि से वही पूछ रहे थे ना आपने, आपका जब लास्ट का जो ये था क्वेश्चन वो ब्रेक हो गया प्रभु जी, मतलब उसमें ब्रेक। मैंने सुना नहीं प्रभु जी, क्या बोला? नहीं, आपने जो लास्ट का जो क्वेश्चन जो था आपका, जो लास्ट में आपने बोला, हमने, मेरा प्रश्न ये था कि आपने बताया था कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि जब करनी चाहिए तो उनसे हो नहीं पा रही थी, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, तो उन्होंने अपनी कृपा कटाक्ष से उस भौतिक सृष्टि पर कृपा कटाक्ष किया, तो जीव उसमें डाला, तो उससे वो जीव चलने मतलब सृष्टि उत्पन्न हुई। वो अभी आपने 2-3 लाइनें कुछ कही थी, तो उससे अगर थोड़ा सा आप और डिटेल कर सकते। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। पहले आपने तो बहुत 2-3 जो पॉइंट्स ऐड किए, तो थैंक यू वेरी मच। और आपका जो प्रश्न था, मतलब वो हम लोग देखते हैं कि मतलब जब ये भूमि रापो नलो वायु वगैरह सब तो जब दिया था ब्रह्मा जी को भगवान ने, तो उसने उनको अलग अलग करके पूरी सृष्टि तो बना दी थी, लेकिन सृष्टि में पावर सप्लाई जैसे बोलते हैं ना, वो पावर सप्लाई नहीं था। पावर सप्लाई के लिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान ने अपनी दृष्टि वहां पे डाल के उन्होंने उसमें सब जीव डाल दिए। तो हर जो सूरज हो या फिर जो भी बनाया था पृथ्वी, वो पृथ्वी चलायमान तब हो गई जब भगवान ने उसमें दृष्टि डाल के उसमें अपने परमात्मा के स्वरूप से ये उसमें सब उन्होंने ये डाल दिए, तब जाके ये जो पृथ्वी है वो चलायमान हो गई। प्रभु जी क्या मतलब जो हमारे हृदय में प्रभु जी आवाज ब्रेक हो गया आपका। मैं कह रहा हूँ जैसे जो हमारे हृदय में परमात्मा रूप में जो भगवान बैठे हुए हैं, वो उन्होंने वो डाला तब जाके पृथ्वी चलायमान हुई। ये मतलब पृथ्वी सृष्टि चलायमान हुई जो परमात्मा रूप में भगवान है। ऑफ कोर्स, हाँ, बराबर है। ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। क्योंकि परमात्मा की वजह से ही तो आज हम लोग मतलब जो भी हम लोग बात कर रहे हैं कि वो शक्ति हम लोग को परमात्मा के थ्रू ही मिल रही है। प्रभु जी मैं समझा था कि वो जीवात्मा उन्होंने डाला तब जाकर के हमें सृष्टि चली, और यहाँ पे आपने बताया परमात्मा के रूप में। ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ गोपी मनु प्रभु जी आप ऐड कर रहे हो। हरे कृष्ण। हाँ नहीं, इसमें ये ऐड करना था कि जैसे हमने देखा कि 3 प्रकार के विष्णु हैं, प्राणोदक्ष विष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु और क्षीरोदक्ष विष्णु। तो परमात्मा जो है वो क्षीरोदक्ष विष्णु है। तो जो सृष्टि हुई थी, वट एवर कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज बाय गर्भोदक्ष विष्णु एंड क्षीरोदक्ष विष्णु इज परमात्मा। तो ऑलरेडी सृष्टि हो चुका था, जीव भी सारे आ गए थे, एंड
वो अणु उसके अंदर एंटर हो गए थे बाद में. So this is what I wanted to add. So if we say technically, if you want to see, so it is Garbhodaksha Vishnu, not Shirodaksha Vishnu. Because Paramatma came later on when the Srishti was already built and he entered into each and every atom. हरे कृष्णा प्रभु जी, लेकिन हम लोग मतलब वही देखते हैं ना, वो एटम में परमात्मा आने के वजह से वो सब चलने लग गया और फिर उनमें वो शक्ति आ गई ना, क्योंकि आज हम लोग में भी जो शक्ति है वो परमात्मा की वजह से. करेक्ट ना प्रभु जी? Gets into action because of Paramatma, but I think प्रभु जी का क्वेश्चन था सृष्टि का. तो सृष्टि was done by Garbhodaksha Vishnu, and when Paramatma, Shirodaksha Vishnu entered, it came into action. हाँ, मतलब वही था प्रभु जी, वही बोले कि मतलब वो बन तो गया था लेकिन वो उसमें चलायमान तब हो गया जब परमात्मा उसमें अंदर आ गए. करेक्ट. वही एक टेक्निकल पॉइंट मेरे को ऐड करना था. Because सृष्टि is done by Garbhodaksha Vishnu, and when Garbhodaksha Vishnu and then Shirodaksha enters, फिर वो जो है स्टार्ट हो जाता है. मतलब वो जैसे हमारे अंदर जब परमात्मा आता है तब स्टार्ट होता है, वैसे ही इसमें जो शिरोदक्षा विष्णु ही इज द मेन इंग्रेडिएंट, यू कैन से, मतलब चलायमान करने के लिए. करेक्ट. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हरे सनातन कृष्ण. बहुत सुंदर क्लास था, बहुत सारे पॉइंट्स नए नए समझने को मिले, बहुत सुंदर तरीके से समझाया आपने. और अभी जब हम लोग ये सुन रहे हैं, इस स्कंद के 5वें अध्याय से ब्रह्मा जी समझा रहे, जो ब्रह्म संहिता में कैप्सूल के रूप में है, वही ये स्कंद में पूरा एक एक डिटेल में है कि किस तरह. तो ये जब सुन रहे थे तो तभी ये भी हुआ कि जब हम लोग पहले से बोल रहे हैं कि पहले से वेद है, इतने सारी देवी देवता की लोग पूजा की, तो वेदों में भी यही लिखा था ना, ईशांक ये देवता है, फिर ये देवता के. तो लोग क्या करते थे, इन सब की पूजा कर रहे थे, और फिर उन्हें भगवान परम है वो भी बाद में पता चलता था. और अभी हमें तो भागवतम है, तो भागवतम से हमें उल्टा पता चलता है कि परम भगवान है, फिर उनके नीचे देवी देवता है. ये प्रभुपाद जी ने कितना अच्छे से समझा दिया ना, नहीं तो हम भी उसी चक्कर में पड़ जाते, हर एक दिन हर एक देवी देवता की पूजा करते हुए. हरे कृष्णा. एकदम सही. बहुत परफेक्ट माता जी, आपने बहुत परफेक्ट पकड़ा है कि हम लोग को परम भगवान के बाद हम लोग को देवी देवता की बात पता चली, जबकि लोगों को पहले देवी देवता और फिर बाद में परम भगवान पे आते. थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा पॉइंट रखा. हरे कृष्णा. प्रणाम.